তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ, দেশ জুড়ে চলছে প্রচার। তারকা প্রার্থী হোক বা হাই ভোল্টেজ কেন্দ্রের প্রার্থী, প্রচারে কেউ কাউকে 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। কেরালা থেকে কর্ণাটক, বাংলা থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র, দেশের সব রাজ্যের সব লোকসভা কেন্দ্রের সব খবরের আপডেট নিয়ে শুরু করছি রিপাবলিক বাংলার মহারণ 2024। আর শুরুতেই আমাদের নজর থাকবে কর্ণাটকের পর মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রে ঝোড়ো প্রচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে উন্নয়ন ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ, তো অন্যদিকে মোদীর নিশানায় এদিনও ছিলেন রাহুল গান্ধী। 60 বছরের রাজত্বে কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতাকেও আরও একবার তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি মোদীর নিশানায় ছিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারও। 7ই মে মহারাষ্ট্রে 11টি কেন্দ্রে ভোট। তার আগে ম্যারাথন প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রচার মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদী। 60 বছরে যা পারেনি কংগ্রেস, 10 বছরে তা করিয়ে দেখিয়েছে মোদী সরকার, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया। গরিবি হটাও স্লোগান দিয়েই দায় সেরেছিল কংগ্রেস। সভা মঞ্চ থেকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর। 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली। নাম না করে রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ শানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। इन प्रयासों के बीच आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साझादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। মোদী সরকারের আমলে দেশ যে সুরক্ষিত তা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था, और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो, वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है? কখনো দেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে, কখনো আবার তোষণের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে চারদিক দিকে ঘিরছেন প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে তৃতীয় দফার ভোটের আগে অস্বস্তি বাড়ছে কংগ্রেস শিবিরে, তা নিঃসন্দেহে বলাই যায়। রিপাবলিক বাংলা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ফেক ভিডিও, যাকে কেন্দ্র করে তৃতীয় দফার আগে শাসক বিরোধী জোর তরজা। কর্ণাটকের জনসভা থেকে বিরোধীদের এক হাত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। ফেক ভিডিও কারা ছড়ালো, কোন উদ্দেশ্যে ছড়ালো জানতে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশও। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিকে 1 মে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। কংগ্রেসের ইস্তেহার প্রকাশিত হতেই চড়ছে রাজনীতির পারদ। দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই সংরক্ষণ ইস্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক ভিডিও। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি সংরক্ষণ অটুট থাকবে, কেউ খতম করতে পারবে না সংরক্ষণ, আর অন্যদিকে ইন্ডি জোট ভোটারদের মন পেতে ফেক ভিডিও ছড়াচ্ছে। मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे ओबीसी भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं,
मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। সংরক্ষণ রক্ষা করতে তৎপর মোদি, অথচ ইন্ডি জোট ও মিম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসির মতো নেতারা ভোটে জিততে ভোটারদের মনে ভয় সৃষ্টি করছেন। এই ইস্যুতে কর্ণাটকের সভামঞ্চ থেকে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। একদিকে মোদির উন্নয়ন, অন্যদিকে বিরোধীদের ভরসা ফেক ভিডিও। ফলের আগে কি হার মেনে নিচ্ছে ইন্ডি জোট? রিপাবলিক বাংলা। অমিত শাহের ফেক ভিডিও, ভোটের আগে ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা বিরোধীদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর এবারে গর্জে উঠলেন অমিত শাহ। গুয়াহাটিতে সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে সোজা সাপটা জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ, हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर दी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया
हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजॉरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकते हैं। राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। বিজেপি নাকি 400 পেলেই সংবিধান বদলে দেবে, ভোটারদের ভয় দেখাতে এভাবেই ভুল বার্তা দিয়ে চলেছে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের সদস্যরা। সংবিধান কেউ বদলাতে পারবে না, এমনকি বাবা সাহেব আম্বেদকরও আর সংবিধান বদলাতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরেও বিভিন্ন জনসভায় সেই ভুল বার্তা দিয়ে চলেছে কংগ্রেস। তীব্র আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। और इमरजेंसी तो देश की जनता आज भी नहीं भूली है। ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने माध्यम बनाया कि 27% जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला आरक्षण है, उस आरक्षण में 6% पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सा काट करके दे दिया जाए। इसी प्रकार से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ जातियों को शामिल करके उनके हकों पर में सेंधमारी की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय भारी विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, अन्यथा वे इस कार्य को उसी समय यूपीए गवर्नमेंट के समय कांग्रेस कर देती। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में उसने सेंधमारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटका सरकार को तलब भी किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माताओं का पूरा सम्मान करती है और उनकी जो मंशा थी उस मंशा के अनुरूप भारत के संविधान को सर्वोच्च मानते हुए
अपने संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और आदर्शों का पूरा सम्मान किया है। মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দিলেন বাঁশুড়ি স্বরাজ এবং পীযূষ গোয়েল। নয়াদিল্লি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রয়াত সুষমা স্বরাজের মেয়ে মুম্বাইয়ের পীযূষ গোয়েলকে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির। এদিন মেগা রোড শো করেন দুজনেই, নজর কাড়লেন। 400 পারের টার্গেট পূরণ, ময়দানে বিজেপির তাবড় নেতারা। মুম্বাইয়ের বড়বড়ি আসন থেকে লড়ছেন বিজেপি প্রার্থী পীযূষ গোয়েল। অন্যদিকে নয়াদিল্লি থেকে বিজেপিকে জয়ের গ্যারান্টি দিচ্ছেন বাঁশুড়ি স্বরাজ। মুম্বাই ও দিল্লির এই ছবি বলে দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদী তথা বিজেপিকে ফের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে কিভাবে সর্বশক্তি দিয়ে ভোটের ময়দানে নেমেছে গেরুয়া ব্রিগেড। একদিকে পীযূষ গোয়েল মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনের ময়দানে, অন্যদিকে তখন দিল্লিতে রোড শো করে বাঁশুড়ি স্বরাজ বার্তা দিলেন মোদীকে ফের ক্ষমতায় আনতে প্রস্তুত তিনিও। বাঁশুড়ি স্বরাজের মনোনয়নের সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং বিজেপি নেতা বীরেন্দ্র সচদেব। অন্যদিকে মুম্বাই রাস্তায় ব্যাপক ভিড় দেখে ফের একবার জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের স্বর পীযূষ গোয়েলের গলায়। लगता है कि चुनाव की तैयारी तो आपने परसों भी जो शायद ऐतिहासिक रोड शो, आज तक मैंने मुंबई में मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा रोड शो मुंबई में नहीं देखा जहां जनता भी उमड़ उमड़ के आ रही थी और कार्यकर्ताओं का उत्साह। हमने तो 1 घंटा सवा घंटे का रोड शो छोटा सा ही रखा था, लेकिन इतना प्यार था कि लगभग 1 घंटा हम शुरू नहीं कर पाए बोरीवली से, क्योंकि कार्यकर्ता इतने जुड़ते जा रहे थे। দেশবাসীর ভালোবাসায় পরপর দুবার ক্ষমতায় ফিরেছে মোদী সরকার। এবার 400-র বেশি আসন পেয়ে এনডিএ জোট জিতবে বলেও বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর টার্গেট পূরণে কোমর কষে ময়দানে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा जीतेंगे। कल हमने उत्तर पश्चिम पे योगेंद्र चंदोलिया जी ने किया था, आज बांसुरी का कर रहे हैं और लगातार हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में है, जनता के साथ काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। মঙ্গলবার পীযূষ গোয়েল এবং বাঁশুড়ি স্বরাজের মনোনয়নের আগে রাস্তায় সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়, শাসক দলের রোড শোতে জনসমুদ্র, যা ইন্ডি জোটের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। জয়ের মুকুট শেষ পর্যন্ত কারা পড়তে চলেছে তা জানা যাবে 4 জুন। রিপাবলিক বাংলা।